زمین کس کی ہے؟ ہر چیز اسی کی ہے. یہ ملک اس کا ہے، شہر اس کا ہے، ہمارے گھر بھی اسی کے ہیں. تو پھر ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، کیا رہ رہے ہیں، کیا بن کر رہ رہے ہیں؟ ہم ایک پردیسی ہیں، مسافر ہے. ایک ہمارا یہاں پر ٹرانزٹ ہے. خدا کی نگاہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ جس طرح انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلہ کی مانند ہے، خدا کی نگاہ میں تو ایسے ہے. اور ہمارے لیے 70-80 سال جو ہے یہ بڑی عمر ہے، لیکن اس کی نگاہ میں جو ایسے ہیں جیسے کٹی ہوئی گھاس. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا کا ہے. تو خدا نے پھر ہمیں کہا ہے کہ تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روزی پانی پر برکت دوں گا، اور تیرے بیچ میں سے جو بیماریاں جو کچھ بھی ہے وہ نکال دوں گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ایماندار ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں. جو نہیں سمجھتے، جو جس طرح کہتا ہے کہ آدم کہتا ہے کہ ہندوستان اور افریقہ کے لوگ جو ہے انہوں نے یسوع مسیح کو بس کلام سنا اور کلام کو قبول کر لیا کہ یسوع زندہ. انہوں نے ہیلیلویہ کہا، ہاں جی زندہ ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ مردوں کو جلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے، بہروں کو سنوائی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قبول جب کیا تو انہوں نے نعرے مارے اور وہ خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے، بلکہ ہو بھی رہے. تو جب ہم مذہبی روایات میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے بڑا مشکل ہے ہمارا نکلنا. مذہبی روایات کے اندر نجات نہیں. یہودی یہی تو کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ رہ گئے. بہت سے یہودی جو ہے اس وقت جو یسوع مسیح کو قبول بھی کر لیا، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے قبول نہ کیا اور آج تک ان کی پشتوں نے قبول نہیں کیا، اور بہت سی پشتیں ہو بھی گئی. تو یہ 50-50 ہو رہا ہے. ہم تو لکی لوگ ہیں، ہم بغیر سنے دیکھے ہم نے کیا کیا؟ ایمان لائے. بغیر سنے بغیر دیکھے تو پھر ہم نیا راہ کیا ہے؟ ہم مبارک لوگ ہیں. آمین. تو پھر ہمارا ایمان بھروسہ جو ہے یہ بڑھنا چاہیے. تو کون بڑھائے گا؟ آپ کے گھر میں جو کلام ہے اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں. اب یہ ایک واقعہ ہے، رسولوں کے مال دیکھیں. اگر کسی نے رسولی خدمت کو جانچنا ہے تو رسولوں کے مال اس میں کتنے دکھ ہیں، اتنے حالات رسولوں کے، اتنے لوگوں کے، اور بڑے بڑے اس میں معجزے بھی ہیں جو رسولوں نے کیے. تو یہ میں اور آپ ہماری زندگی کے حالات ان ہی کی طرح قلم بند ہیں. ہم بھی اسی طرح کی. اب دیکھیں جب ہمیں یسوع ملا ہم تبدیل ہو گئے. تو میرے چیزوں ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے بعد میں اس کی دعوت کروں گا. اعمال اس کا 3 باب پہلی آیت سے، پطرس اور یوحنا دعا کے بعد یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے. وہ جا رہے تھے اور ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے
वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और वो ऊँट खड़ा हो गया और चलते फिरने लगा, और चलता उड़ता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में अंदर चला गया, दरवाजा के अंदर दाखिल हो गया। तो हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, अब यहाँ पर एक पॉइंट है दुआ। दुआ के वक्त क्या करते थे? वो एक टाइम था, कौन सा पहर था? तीसरा पहर था। इसका मतलब है तीसरे पहर भी वो खुदा की हजूरी में जाते और दुआ करते। इसका मतलब दानियल जो था वो भी दिन में 3 दफा खुदा की तरफ झुकता था, और हैकल की तरफ जो दरवाजा था, जो खिड़की थी, उसकी तरफ मुंह करके वो दुआ करता, क्योंकि वो असेरी में था, और हैकल की तरफ मुंह करके 3 दफा झुकता और खुदा के हुजूर में अपने आप को सरेंडर करता और उसकी तमजीद करता। और देखिए, जिन्होंने भी दुआएं की, जिन्होंने भी ईमान रखा, तो उन्होंने रहाई पाई, बरकत पाई, शिफा पाई, शादबानी पाई। तो लिखा है कि यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। अब देखिए उसने क्या किया। जन्म का लंगड़ा है, उसको पता नहीं कि आज मेरी जिंदगी में कौन सा मोर्चा और क्या मेरी जिंदगी में होना, और मुझे और आपको भी नहीं पता कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। लेकिन जो यीशु मसीह में है उनके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। ये मत समझे कि हम इस वक्त बड़ी सावधानी के साथ गुजार रहे वक्त और हो रहा है हमारे साथ कलाम हम सुन रहे हैं तो इसके बाद कोई बुरा हो जाए। नहीं, जब हम ईमान रखते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, तो मेरे दिल इसके बाद भी जो कुछ भी होगा उसकी मर्जी के मुताबिक वो ठीक होगा। अब उसको ये नहीं पता था कि जन्म का लंगड़ा जो है वो ठीक होने वाला है, वो चलने वाला है। जन्म का लंगड़ा बड़ा मुश्किल है, या जो बिल्कुल ही पैरालाइज हो तो वो चल सके, ये बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। जिस तरह आज हमारे अंदर रवायात ने मुझे और आपको जकड़ा हुआ है, हम उन रवायात के अंदर इस तरह जकड़े हुए, जिस तरह ये जन्म का लंगड़ा जो है, इसको वो बदरू या वो बीमारी या जो कोई गुनाह है उसने उसको जकड़ा हुआ, नहीं चलने दे रहा, नहीं उसको उस जिंदगी के दरवाजा और वो भेड़ों के दरवाजा के अंदर उसको दाखिल नहीं होने देता, लेकिन उसको मजबूर करने या वो तस्वीरें, वो बीमारी, वो लाचारी कि तू मांग। इसका मतलब ये भी काम है, मांगना कोई काम है। खुदा मुझसे और आपसे कुछ लेना चाहता है, खुदा मुझसे आपसे कुछ काम जो करवाना चाहता है, वो हमारी जिंदगी में कुछ रखना चाहता है, और उससे वो मेरे और आपके लिए काम करना चाहता है कि हम क्या करने वाले हैं। खुदा हमारे लिए सब कुछ उसने अच्छा ही किया हुआ है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए हर चीज़ बनाकर रखी हुई है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए घर तैयार किए हुए कि नहीं? हाँ जी, हेलो, यस, घर हमारे लिए तैयार किए हुए ना। इसका मतलब जब घर तैयार है तो फिर हमारा आगे जो वक्त है, मुस्तकबिल जो अगला भी है, उसमें भी मेरे और आपके लिए उसने बहुत कुछ किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। सिर्फ हमारे अपने अमालों, हमारे अपने किरदार, हमारे अपने बोल, हमारे अपने करैक्टर, हमारे चाल चलन की वजह से वो जो काम है वो हमें नहीं मिलता, या वो जगह हमें नहीं मिलती। हम शायद हो सकता है उस बरकत से पीछे रह जाते हैं। उसने मेरे और आपके लिए सारे काम कर दिए हैं। ये जन्म का जो लंगड़ा है, इसकी जिंदगी में मुआवजा होता है,
देखिए, आज मैं और आप उस दरवाज़ा में दाखिल हो चुके हैं, और हम हो सकता है कि बहुत दफ़ा उस दरवाज़ा से बाहर भी आ जाते हैं। हमें कहाँ पर होना चाहिए? उस दरवाजे के अंदर होना चाहिए, जो ज़िंदगी का दरवाज़ा, जो भेड़ों का दरवाज़ा, जो मेरे और आपके लिए उसने, बल्कि वो दरबान जो है वो अपनी भेड़ों के लिए दरवाज़ा को खोल देता है। तो दरवाज़ा तो खुला हुआ है, और एक दरवाज़ा वो है जो कुशादा है, जो बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जिसमें बहुत से लोग जो हैं दाखिल होने वाले हैं। और एक दरवाज़ा जो है वो ज़िंदगी का दरवाज़ा है, जो सुकड़ा हुआ है। कहते हैं कि वो इस तरह का दरवाज़ा होगा। किसी खादम ने बताया कि वो जो दरवाज़ा है, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान लगा ले, जिसमें बड़ी मुश्किल से एक इंसान जो है निकल सकता है। 3 बाई 4 का लगा ले, छोटा सा दरवाजा, मोटा भी निकल जाए, छोटा भी निकल जाए। इस तरह का कहता है कि उसने ख्वाब देखा कि मैं उसमें से इस तरह निकला हूँ, और जब मैं निकला हूँ तो आगे बहुत ही अजीमुल शान जो है वो नज़ारे हैं, वो खुदा के बरकतें हैं, और वो ऐसी जगह, खूबसूरत जगह जो ज़मीन पर नहीं है। तो ये दरवाज़ा जो है ये यीशु मसीह है कि तंग दरवाज़ा से दाखिल हो। तो आज क्या हम जन्म के लंगड़े की तरह पैरालाइज तो नहीं, मफलूज तो नहीं, दुआ में भी हम मफलूज हैं, हम अपने किरदार में भी मफलूज हैं, हम बातों में भी मफलूज हैं, हर एक बात में हमारे अंदर लंगड़ापन है। तो फिर हम उस दरवाज़ा से कैसे तवक्कुल रखें जब हमारे अंदर ताकत ही नहीं है? तो फिर इसका मतलब है जब हम रूहानी इज्तिमा में, या हम चर्च में, या हम अपने घर में गेट टुगेदर अपनी फैमिली के साथ जब हम दुआ करते हैं, तो वो फिर दरवाज़ा में हम दाखिल हो जाते हैं, जो कहता है भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। तो मेरे चीज़ों, यीशु मसीह मुझे और आपको उस दरवाज़ा से अंदर, उस दरवाज़ा से दाखिल करना चाहता है। और लोगों ने एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, वो दुआ करने जा रहे थे, ये उसको ला रहे थे। आज इसकी निजात है, आज इसकी रहाई है। देखें, ये जो दिन है, ये मेरे और आपके लिए हर दिन जो है हमारी निजात का दिन है, कि ये दिन आपकी निजात का दिन है, ये दिन आपकी रहाई का दिन है। इसको नहीं मालूम, जिसका वही हर रोज़ का मांगना, भाई दे जा तेरी मेहरबानी, या ये या शोर, जिस तरह भी उसका स्टाइल था मांगने का, वो मांगता रहा। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि उसके दरवाजे के आगे आकर कोई बैठा रहे या खड़ा रहे, वो उसको अंदर ले जाएगा। इसको तो मालूम नहीं, ना तो ये ईमानदार है। अगर देखा जाए, मैं भी हो सकता है इसका पीछे गिराना जो है वो ईमानदार हो, या दुआएं करता हो, या उनका ईमान यीशु मसीह पर आ गया हो कि हमारा जो बंदा है, या हमारा जो भाई है, हमारा जो बेटा है, ये भी एक दिन जब जैसे ही इसको यीशु मसीह मिलेगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। शायद इसीलिए उसको वहाँ पर बिठाते थे, क्योंकि शागिर्द भी यीशु मसीह को खूबसूरत दरवाज़ा दिखाते थे। ऐ इब्ने दाऊद, देख ये खूबसूरत दरवाज़ा, खूबसूरत दरवाज़ा, ये तो आसमानी दरवाज़ा था। इसका मतलब है कि वो जो हैकल का नक्शा था, ये तो आसमान से नीचे खुदा ने दाऊद और मूसा को दिया था, अपना दाऊद और सुलेमान को दिया था। उसको सुलेमानी जो है हैकल, ये आसमान का नक्शा ज़मीन पर था, वो यीशु को दिखा रहे। देख रब्बी साथ कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। कहता हाँ, ये जो हैकल है 3 दिन में उसमार हो जाएगी। क्या होगा? और कहता है कि ये 3 दिन में मैं इसको बना दूंगा। और लोगों ने इस पर शक किया कि ये कैसा है, ये जो इतने साल लग गए और इसको बना के इतने मजदूर लगे और इतनी लेबर जो है उसने काम किया। तो मेरे चीज़ों, वो ज़िंदगी का दरवाज़ा जो है वो मुझे और आपको आज दाखिल करना चाहता है। वो आसमानी गोया जो है मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। उस दरवाज़ा में मुझे और आपको दाखिल होने की
ज़रूरत है इस जन्म के लंगड़े की तरह दरवाजे के पास बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस दरवाज़ा से दाखिल हो जाए। अब देखें, जैसे हम ये रूहानी मजमा में गए हैं, क्या है, मैंने वहाँ पर रोया देखी, 2 दफ़ा देखी, जितनी भी दफ़ा दुआएं हुए खुदा लगाता। इसका मतलब है हमारा मिल बैठना जो है हमारे लिए निजात, रहाई और बरकत का सबब है। हमें मिलकर दुआ करनी चाहिए। अगर हमारी आंखें रूहानी नहीं खुली तो वो भी खुल जाएंगी, तो आपको बरकत खुदा जरूर देगा, निजात जरूर देगा। तो इसकी निजात जो है, जो जन्म का लंगड़ा है, जिसको आज रहाई मिलने वाली, तो इसको ला रहे थे, जिसको हर रोज बैठकर के उस दरवाजा पर बैठा देते थे, जो खूबसूरत कहलाता है। अब देखिए, इसके बारे में, दरवाजे के बारे में देखें, हम देखते हैं यूहन्ना के इंजील में लिखा हुआ, यरूशलेम में भीड़ दरवाजा। कहते हैं कि भीड़ दरवाजा, यरूशलेम के 12 गेट थे, नहमिया के अंदर लिखे हुए हैं। पानी फाटक है, दरवाजा है, भीड़ दरवाजा, मछली, कूड़ा फाटक, इस तरह सारे दरवाजों के नाम है। मशरकी फाटक, मशरकी फाटक जिसको गोल्डन गेट कहते हैं, जहाँ से यीशु मसीह का जलाल जाहिर हुआ, और उस दरवाजा से यीशु मसीह अंदर गए। जिस दिन आम संडे उसका जलाल उधर से गुजरता हुआ गया, और वो दरवाज़ा आज भी बंद है, और वो फिर खुलने वाला है, जो बादलों पर बैठकर फिर वो नीचे आने वाला है, और वो ईमानदारों को लेकर जाने वाला है। तो लिखा, यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज था। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 10:1 में यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भीड़ खाना में दाखिल नहीं होता, बल्कि और किसी से तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। दरवाजे खुलोते हैं तो गल्ला बड़ियाँ करनी है, दाखिल किसी को भी नहीं होने देती। वही मजहबी रवायात जो है हमारे अंदर है, नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, जो कलाम कहता है कि तुम जिंदगी का नूर हो, कि यीशु मसीह नूर है, और उस नूर में हमने दाखिल होने की जरूरत है। तो वो फरमाता है कि चोर दरवाजे से जो दाखिल होगा तो वो उसके लायक नहीं है। जिस तरह बर्रे की एक ज़ियाफत जो है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक मालिक ने, एक बादशाह ने अपने ज़ियाफत तैयार की, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, आर्डर तो हुआ था कि सारे शादी में है, दूसरे नहीं है, दूसरे लोग गली चौकों मोड़ों पर जो लोग थे वो आ गए, और एक बगैर पोशाक के था, मुराद के वो शादी के लिबास में नहीं था। उसको कहता है कि भाई मियाँ, तेरी पोशाक कहाँ गई, कि तूने तो ना तौबा की है, ना कोई यीशु को पुकारा है, कैसे तू आ गया। तो हम लोग ऐसे हैं, हम किस तरह जाना चाहते हैं, उस दरवाज़ा से दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यूहन्ना के इंजील 10:2 में, लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। फिर यूहन्ना 10:3 में, उसके दरवाज़ा खोल देते हैं। उसके बाद यूहन्ना 18 में, लेकिन पतरस दरवाज़ा पर बाहर खड़ा रहा, जन्म के लंगड़े की तरह खड़ा रहा। इसका मतलब है कि पतरस भी डर के मारे बाहर खड़ा रहा, क्योंकि यीशु मसीह की अंदर जो है अदालत हो रही थी, और वहाँ पर एक औरत आई कि ये भी गलीली है, जब वो आग ताप रहा था। इसका मतलब वो बाहर खड़ा। तो आज जन्म का लंगड़ा जो है वो भी बाहर बैठा भीख मांग रहा था, और उसकी रहाई का दिन आ गया। तो मेरे अज़ीज़ों, और जब इन्होंने देखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। मांगने वाले ने क्या मांगा? हाँ जी, पैसे, रोटी, कपड़ा, जो कुछ इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो पैसा मांगता है। मुझे भाई भेजा, तेरा भला हो, तेरा मैं शुक्रिया अदा, तुम इस तरह कर दे, ये होगा। बड़ी अपनी तरफ से वो दुआएं दे रहे, जो मांगने वाले बड़ी दुआएं देते हैं। हम उन पर डिपेंड करते हैं, लोगों पर,
जिसको हम पैसा देते हैं मांगने वाले को, नहीं इनको देना चाहिए, ठीक है दें, लेकिन हमारा ईमान भरोसा भी इस तरह बन जाता है कि ये दुआ तो दे रहा है, लेकिन नहीं, वो पता नहीं अंदर से कैसा है, वो सिर्फ लफ्ज़ी है, वो सिर्फ वो दरवाजे के बाहर खड़े होने वाले लोग हैं, उनका कारोबार है। तो मेरे जीजों, उस कारोबार की तरह मुझे और आपको यीशु मसीह के इस काम को कारोबारी ना बनाए, कारोबारी बनाए, ठीक है। दुआ की चर्च के बात है भाई, अंदर को भी झांके, हम अपने माइंड को भी परखे, हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किस दरवाजे पर खड़े हैं, कुशादा दरवाजा के सुपड़ा दरवाजा। तो आगे लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। अब उसके ये तासरात हो गए मांगने वाले के कि ये अब मुझे कुछ न कुछ देगी, लेकिन वो रूहानी तौर पर उसके अंदर देख रहे थे कि इसके अंदर शफा पाने की कुव्वत है। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। आज आपके अंदर भी वो चीज़ है, क्योंकि आप और मैं उनके खरीदे हुए लोग हैं। सिर्फ हम दरवाज़ा के अंदर दाखिल हो जाएं तो यही बरकतें जो पतरस और यूहन्ना के पास थी, ये बरकतें आपके अंदर भी जारी सारी हो जाएंगे, और आप भी यही कहेंगे कि हमारे पास ये तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे दुआ देता हूँ, और वो दुआ उसके लिए बाइस बरकत, बाइस निजात और बाइस खुशी का सबब बन सकती है। क्योंकि इनके पास क्या था, ये तो गरीब लोग भाई, हो सकता है इनके घर में चूल्हा भी ना जलता हो, मछलियाँ पकड़ने वाले लोग, कमज़ोर और गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले। क्योंकि अमीर आदमी कौन था, एक मत्ती आया था वसूल लेने वाला, बाकी तो गरीब थे, और गुर्बत में उन्होंने यीशु मसीह को कबूल करके और उसके कलाम को पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया। और आज हमारे जो हाथों में ये बाइबल है, ये उन्हीं की बदौलत है। यहाँ पर रसूल आए, पाकिस्तान में भी थोमा रसूल आया। तो मेरे चीज़ों, उसने कहा, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। तो आज आपके पास क्या है रूहानी तौर पर? क्या बात, ईमान, यीशु, हमारे पास यीशु है भाई, यीशु है, हम उनके खरीदे हुए लोग हैं। यीशु ने मेरे और आपके लिए फिदिया दे दिया है। ये कमजोरी जो है ये इब्लीस की तरफ से आती है कि हम क्या कहेंगे भाई, दलेर हो जाए, हम इकरार करते हैं, ईमान रखते हैं, हमारे अंदर यीशु है, तो फिर वही बरकतें पॉलिश होना शुरू हो जाएगी। क्यों हम शर्माते हैं, क्यों घबराते हैं? ये कहें हमारे अंदर यीशु है, ईमान तो है, हमारे अंदर यीशु है। पतरस और यूहन्ना कहते हैं, जो हम में है, क्या है? यीशु। यीशु के नाम से उठ और चल के। तो ये है मुझे और आपको उस दरवाजे के अंदर आज यीशु मसीह लेना चाहता है। मुझे और आपको इस दरवाजे से दाखिल होना ज़रूर है, जहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी है, जो मेरे और आपके लिए वो मकान, वो घर, वो खुशियाँ, वो ज़िंदगी का दरख्त, वो शादमानी, वो ज़ियाफ़त जो है वो तैयार है, और वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। मछेरों के पास क्या था? क्या था? यीशु। क्योंकि उन्होंने पाया, उन्होंने उस दरवाजे में से निकल गए, उन मुसीबतों में से वो निकल गए कि इस ज़िंदगी में और इस हालात में ज़िंदगी जो वो भी यही स्टाइल था जिस तरह आज है। गुर्बत उस वक्त भी थी, गुर्बत आज भी है। आज ईमानदारों के अंदर जो इतनी गुर्बत छाई हुई है तो कोई सोच भी नहीं है, और जब शागिर्दों पर गौर करें तो उस पर भी आप जजमेंट कर सकते हैं
क्या वाकई शागिर्द ऐसे ऐसे थे? वो कई परवाह नहीं करते, वो निकल जाते, नो प्रॉब्लम। यीशु है, वो करेगा और वो मुहैया करता रहा। और आज वहाँ वो कहाँ पर है? आज वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है, के बाप इब्राहिम की गोद में है। इसको अच्छी जगह है ना। इस जमीन पर क्या हम क्यों फिक्र करते हैं? क्या रोज की रोटी वो मुझे और आपको देता है कि नहीं? खिला के सुलाता है कि नहीं? कोई टेंशन क्यों लेते? जेड़ा पहाड़ टूटना है टूट पवे, जो वक्त आने दे, लेकिन आप तैयार रहें, क्योंकि आपके अंदर यीशु है। जो कुछ मेरे अंदर है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु को बाहर निकाले, आपके अंदर है, क्योंकि आप उस दरवाजा के अंदर से होकर आगे हैं। आप ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सी कमी घाटे ये तो है, लेकिन जब हम इकरार कर लेते हैं कि मेरे अंदर यीशु है, तो फिर आपके हालात बदल जाएंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास जो है वो मैं तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और सीधा उसके पांव और टखने इतने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ किधर गया? दाखिल हो गया, दरवाजे में से गुजर गया, निकल गया। इसका मतलब है मैं और आप दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हम अंदर से बाहर फिर आ गए, फिर हमारा स्टैंड वही है। तो आज हम इस बात पर स्टैंड हो जाए, भीड़ों का दरवाजा यीशु है, और हमारे अंदर यीशु है कि जो कुछ हमारे अंदर है वो मैं तुझे दिए देता। जो कुछ आपके हाथ में है वो आपको दिखा देता। आपके हाथ में बड़ी ताकत है। ये आपके हाथ नहीं है, ये आपके हाथ खुदा के बेटे यीशु के हाथ है। जिस पर भी आप ईमान के साथ रखेंगे वो शिफा, निजात, रहाई, बरकत पाएगा। आमीन। अगर जन्म का लंगड़ा एक रहाई पा सकता है, आज क्या मैं और आप इस लंगड़ेपन से बाहर निकलते हैं कि नहीं? हमें निकलने की जरूरत है, और उस दरवाजा से दाखिल होने की जरूरत है। और जब दाखिल हो गए हैं तो फिर बाहर ना आए। जो बाहर आना जाना करते हैं तो उनकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात हो जाती है। बाहर ना निकले, अंदर ही रहे। अंदर क्या है? अंदर दुआ है। अंदर क्या है? हमारे अच्छे किरदार हैं कि जो हम करके दिखाएंगे। अंदर बरकतें हैं, अंदर खुशियां हैं, अंदर शादमानियां हैं, अंदर हमारी मुनाजात पूरी होती है कि हमें खुदा के हाथ के नीचे रहने की जरूरत है, ताकि हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। सो मेरे जीजों, आज हमारे अंदर जो मफलूजपन है इसको निकाल कि हर रोज हम खड़े ना रहें, हम दरवाजे से दाखिल हो जाए, यीशु के अंदर चले। वो मेरे और आपके दिल में रहना चाहता है, दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाना है, ताकि जो कोई मेरी आवाज़ सुने मैं उसके साथ क्या करूँगा? खाना खाऊंगा। भाई यीशु भूखा है, कौन सा खाना? रूहानी खुराक। उसने मेरे और आपके लिए वो दस्तरखान तैयार किए हुए हैं। ऊपर तैयारी है, दस्तरखान लगे हुए हैं, हर एक चीज जो है वो तैयार है। सिर्फ बेटे का इंतजार है। बाप ने जब इजाजत अपने बेटे को देनी है तब वो आएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। तो हमें फिर तैयारी करने की जरूरत है। उस दरवाजा में से बाहर ना निकले। बाहर निकलेंगे तो मफलूज हो जाएगा, बाहर निकलेंगे तो बीमारियां आ जाएंगी, बाहर निकलेंगे तो अच्छे काम बुरे हो जाएंगे। सो खुदावन के पाक कलाम का बड़ा सुनना जरा हम सबों के लिए बाइस से आमीन। दुआ करेंगे। वापसमानी हम तेरे हुजूर में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। हम जान गए कि वापसमानी हमारी जिंदगी का दरवाजा,
उन्हें मेरे और आपके लिए, सब के लिए उसने कर दिया। जो कोई अंदर दाखिल होता है वो जिंदगी का पानी, वो जिंदगी के दरख्त के पास जाएगा और उन नेमतों बरकतों से जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है वो देगा। वो मुझे और आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा और वो कभी पीछे नहीं बल्कि हमें आगे ले जाएगा। हमें उसके फजल के तख्त के सामने हाजिर होना है। तो आए हम आज अपनी जिंदगियों में से वो मफलूज पर, वो मायूसी, वो वापसमानी निकम्मे काम और यीशु के नाम से निकाल तेरी मिन्नत करता। इन सब पर अपना राम का थोड़ा हाथ बढ़ा और ये जाने कि हमारे अंदर यीशु है। जिस तरह पतरस और यूहन्ना कहता है कि जो मुझ में है, जो हम में है, हम में खुदा का बेटा यीशु है। उसको निकाले, उसको तरजीह दे, उसको इज्जत और जलाल दे, तब वो हमारी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में वो जलाल वाले काम करेगा, वो मोजज़ाती काम करेगा। जब पतरस और यूहन्ना ने इस बात का इकरार करके यीशु को पुकारा, उसके नाम में कुदरत, शिफा है और वापसमानी, वो लंगड़ा चलने लगा। तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वापसमानी की रुकावटों को दरखास्त सुन और कबूल कर। जितने भी बैठे हैं खुदा, ये तेरे दरवाजा में दाखिल हो जाए और कभी भी बाहर ना आए। इनको बड़ी बरकत है, इनकी रहनुमाई का हर रोज तुझ में मजबूत हो। इनकी रूहानी आंखों को खोल आए खुदा, तुझ में मजबूत हो जाए और ये दूसरों को, अपने घरानों को, अपने अजीजों को मजबूत करे और उनको भी उसी दरवाज़ा में से दाखिल कर ले जो भेड़ों का दरवाज़ा, जो अच्छा चरवाहा, जो जिंदगी का पानी, जो आसमान से उतरी रोटी है, उस दरवाज़ा में वो दाखिल करना चाहिए। वापसवानी को बड़ी बरकत इनके साथ हो, इनकी बड़ी रहनुमाई करना और सारा जलाल तुझे मिले, ये तुझ में मजबूत हो जाए। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इनके साथ हो, इनको बरकत दे। ये लाचार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, तेरे हुजूर पे आते हैं तो इनकी बीमारियाँ, लाचारियाँ, परेशानियाँ यीशु के नाम से जाती रहे। इनकी टेंशनें यीशु के नाम से जाती रहे। जो भी नाउम्मीद हो चुके हैं वो भी यीशु के नाम से जाती रहे और खुशी में, शादमानी में बदल गया। इनको बड़ी बरकत दे आपका, इनके हालात पर बरकत दे, इनके घरानों पर बरकत दे, इनके घरानों के अंदर है खुदा तेरा जलाल साहे। जब ये अपने दिल से कहेंगे कि मैं तुझे यीशु के नाम में बरकत देगा, वापस मन ये होगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, आमीन। इंजील को फैलाना ये काम, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। का ज़माने में हम प्यारा है। मुनजी का ज़माने में ये नाम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे, छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर छेड़ेंगे वही नगमे, यीशु के इशारों पर। तकलीफों का क्या कहना, तकलीफों का क्या कहना, गवारा है। तकलीफों का क्या कहना,
ابلیس کے نعرے پہ تسلیس کے نعرے پہ فضاؤں میں ڈھونڈیں گے فضاؤں میں تسلیس کے نعرے پہ ڈھونڈیں گے فضاؤں میں ابلیس ہوا لرزا ابلیس ہوا لرزا اس دوست نے مارا ہے ابلیس ہوا لرزا اس دوست نے مارا ہے نبیوں میں تیری عظمت نبیوں میں تیری عظمت حشمت ہے فرشتوں میں نبیوں میں تیری عظمت حشمت ہے فرشتوں میں آنکھوں کا وہ تارا ہے آنکھوں کا وہ تارا ہے مریم کا دلارا ہے آنکھوں کا وہ تارا ہے مریم کا دلارا ہے ہم خون کا ہر قطرہ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے دل اس سے منور ہے دل اس سے منور ہے احسان یہ بھارا ہے دل اس سے منور ہے احسان یہ بھارا ہے انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے جی کا زمانے میں یہ نام پیارا ہے آمین واپس مانیے ہم تیرے حضور میں آتے ہیں تیری شکر گزاری بجا لاتے ہوئے تیری سربلند کرتے ہیں میں واپس مانی آج کی اس عبادت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تو نے ہمیں سکھایا ہمارے اندر یسوع ہے ہمیں کسی بات کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ دلیری ہونی چاہیے کہ وہ بیڑوں کا دروازہ زندگی کا دروازہ وہ زندگی کے دروازے سے مجھے رات کو داخل کرنا چاہتا ہے کہ ہم داخل ہو چکے ہیں اس ایمان کے ساتھ اور باہر نہ آئے باہر حالات خراب ہیں تو واپس مانی میں تیرے حضور میں منت کرتا ہوں جتنے بھی سر جھکے ہیں ان سبوں کی جو بھی حادثے مرادیں ہیں وہ بھی سننا حالات پر برکت موسم پر برکت ملک پر اور جتنے بھی خاندان کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے ان کے اندر سے بھی آئے خدا تو بیماریوں کو نکال جب یہ اس زندگی کے دروازہ سے داخل ہو جائیں گے ہر روز داخل ہوں گے تو بیماریاں باہر نکل جائیں گی اسی لیے اس دروازہ کے باہر مفلوج پر اندر جو جاتا ہے وہ شادمانی اپنی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں واپس مانی تیرے بچوں نے تیرے دیے میں سے دیا اس کے عوض میں آسمان جو بڑا اچھا خزانہ ہے ان کے لیے کھول
इनकी कमाइयों में बरकत डाल, इनके खत्ते यीशु के नाम से भरे रहें, जिनके कामों में रुकावट है वो दूर करना, इनको तरक्की देना, और यबीस की तरह इनकी हदों को बढ़ाना, और जो कुछ तेरे हजूर से मांगते हैं इनको अनायत करना, बड़ी बरकत देना, और ये सरफराजी पाए, बरकत पर बरकत पाए। और बाप समानी मैं तेरे हजूर में मिन्नत करता हूँ, जितने भी तेरे हजूर में बेटे और बेटियाँ अजीज़ व कारब हैं, सब की इल्तिजाएं दरखास्तें तेरे पास हैं, और इनके अंदर जब तू होगा तो बाप समानी ये जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, ये दूसरों को तेरी कुर्बत में लाएंगे और उस दरवाज़ा से दाखिल करेंगे जो जिंदगी का दरवाज़ा है, जो जिंदगी का पानी है, उसमें दाखिल करने वाले बन जाएंगे। तेरे ऊपर गहरा फजल कर, और ये भी तुझ में और बढ़े और मजबूत हो जाए कि बाप समानी उस दरवाज़ा से दाखिल हो जाए। इनके खानदानों में जो भी कमजोरियां निशानियां हैं वो यीशु मसीह के नाम से दूर कर, इनको शफा और रहाई दे। हम अपने इलाके पर तेरी बरकत, हम अपने शहर पर, हम अपने मुल्क पाकिस्तान पर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के सदर, अदलिया, वज़ीर आज़म, कानून साजदारों के लिए, नेवी, पुलिस, आर्मी के लिए तेरी हिकमत और भलाई कैम को मांग लेते हैं। और बाप समानी जो कुछ तू करेगा इनके लिए बार बार होगा। हम मुल्क पाकिस्तान की सरहदों को बरकत, इकानमी को बरकत और फसलों को बरकत देते हैं। अब बाप समानी जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में तू बड़े अजायब काम करेगा और हालात बदलेगा, और बहुत कुछ तू करने वाला है। जो कुछ करेगा तू भला करेगा। बेशक बाप समानी कि हम तेरी कुर्बत में इसी तरह रहें। बाप समानी इस मुल्क पर रहम कर, और बहुत से तू लोगों को बाप समानी उस जिंदगी के दरवाजे में से दाखिल करना चाहता है। तू जानता है जिसे तू लेकर आना चाहता है, और तू ले आता है। तू बाप समानी जो भाग जाते हैं तेरी हजूरी से, उनको भी तू ले आता है। तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा सारे वक्त के लिए। जो बाप समानी नहीं आते, मैं उनके लिए भी दुआ दूँ, उनके अंदर भी तो अपने कलाम की भूख और प्यास लगा। जो घरों में बैठे आए खुदा, दूसरे कामों में मसरूफ है, उनके लिए मैं दुआ खैर करता हूँ। उनके अंदर भी तेरा कलाम है, उनकी रूहानी आंखों को खोल आए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। इसी तरह हाजिर जमात पर भी अपनी बाप समानी शफकत वाला, बरकत वाला और रूहानियत में इनको और मजबूत कर, बल्कि इनकी भी रूहानी आंखों को खोल है। तो बड़ी बरकत, सारा जलाल तुझे तो बेटे यीशु मसीह को भी दे। और जो कुछ बाप समानी हम नहीं मांग सके, या जो कुछ रह गया तू तो जानता है, तेरे अलाही खजानों में से तू अपने बच्चों को इनके लिए जाहिर कर, इनके लिए मुहैया कर, और तू कर देगा। जब हम तुझे बाप कह के पुकारते हैं तो तू हमें देता है। तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे खिलाफ वो सारी नेगेटिव बातें, जहालत की बातें यीशु के नाम से हम बाइंड और रिमूव करके तेरी सलीब के नीचे लाते हैं। बाप समानी जो कुछ भी इसके बाद हम करें, तेरे डर और खौफ में रहकर उसको जलाल तू बड़ी बरकत दे। ये दुआ कर बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, मेरे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान ज़मीन है, जैसे तू हमारे पास मेज़बाश अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, दरबार की मोहब्बत, पाक रूहुल फातह और शराकत सादत जमात के साथ, पूरे घरानों के साथ और दुनिया को इनका ईमानदारों के साथ और बनी इस्राइल के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। गम की सलामती आप सबके साथ हो। सबको